तो एक चीज क्लियर थी, इस कॉलेज में टॉप तो करना, राइट? मतलब कुछ तो करें जिंदगी में अब। तो पहले साल टॉप कर दिया, नंबर 1, राइट? आई रिमेंबर आई हैड अ बेड जहाँ पे आधा बेड हमेशा किताबों से भरा होता था। तो एंटरप्रेन्योरशिप कहीं बैक बर्नर में कहीं चली गई थी, और मुझे याद है जो पहला गोल मैंने लिखा था वो था एंटरप्रेन्योरशिप. We at Sunicorn Ventures also invested in that. Yes. You are one of those guys who said चल कर ले आकाश. जब स्टार्ट किया था नाम था मोबीसी, came with ZYPP. ये कर लेते हैं, 4 लेटर भी बन गए. थोड़ा जिंगी भी हो गया. I know your mother also invested, right? Yes. My mother also invested in 10 scooters. I remember my sister invested for the first time. So hi everyone, welcome to the new episode of our podcast series Pep Talk with Vijay. ये podcast series हम shoot कर रहे हैं with investors and founders for bringing that hidden action from the startup ecosystem to all of you. तो आज के गेस्ट हैं हमारे आकाश गुप्ता, founder of Zip Electric. So welcome Akash. Good to be here. Absolutely a pleasure to host you, man. So Akash, start करते हैं with some casual conversations. Yeah. Because tell me about your journey in Jaipur. I know you have a college life and then Zip came to picture, but I want to first understand who Akash Gupta is from the core when you were in Jaipur. Sure. So I think जयपुर में हम लोग एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट करा. I think we were living in a rented house when I was born. It's a place called Jhotwada. My dad has always been a doctor. तो वो गवर्नमेंट में he's been senior medical officer, right, in Rajasthan government. And it's a very humble start, right? एक ही चीज़ I think बचपन से सीखी है, that you need to really perform well in life अगर कुछ करना है ज़िंदगी में. मतलब I think my mom is the one who talks more and who kind of instills a lot more. तो मुझे हमेशा से याद है, मतलब वो ना न्यूज़पेपर कटिंग्स रखती थी अपने पास हमेशा, और न्यूज़पेपर में ना हमेशा एक छोटा सा एक मॉरल स्टोरी का एक वो कॉलम आता था, राइट, वेयर कुछ स्टोरी होती थी और आखिरी में बहुत अच्छा मॉरल होता था. एंड शी always used to read it out for me. Right. Even when I went to college, जब मैं जयपुर छोड़ के बाहर गया तब भी वो कहानियाँ उनकी चलती रहती थी. आजकल वो व्हाट्सएप पे भेज देती हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आता, बट when she used to narrate them over a call or तो वही चीज़ I think हमेशा से बचपन में ना she's kind of pushed me, right? Dad has always been busy. पापा हमेशा अपने डॉक्टर, क्योंकि रात को कॉल आ रहा है, सुबह कॉल आ रहा है. While we were living in a rented house, most of our other relatives always had a good house. राइट, एंड व्हेन आई रियलाइज द डिफरेंस, तो वो लोग सब बिजनेस कर रहे थे, राइट. और आई थिंक देयर आर ओनली 1 or 2 पीपल इन द एंटायर फैमिली जिन्होंने जॉब किया, राइट. और फिर मेरे को थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया कि बिजनेस में यू हैव मोर कंट्रोल, यू हैव पॉसिबली बेटर लाइफस्टाइल, राइट. तो वो एक ड्रीम सा बन गया कि मुझे भी बिजनेस तो कभी तो करना है. Yeah, so I think this is Jaipur for me, right? Jaipur days were more about a very humbling experience, where the only thing that I had with me is poise and determination and figuring it out. I clearly call it as a figuring it out. When I go back, I might want to change everything that I did there, but I think that was one of the building blocks. Awesome. So see, I don't want to add my story, but this is very similar story what Really? I also had around it. So this podcast is about you. We'll focus on that. But this gave a basis. We'll have you then on my podcast to cover your story. Moving forward, I know that you did your MBA also, Yeah. right? A little more about that story. Yeah, so see, I think मतलब education भी मैं कहूँगा कि it was not like a cakewalk, right? Like people see कि ये सब हो गया तो, but since a lot of the listeners today would be people who are possibly from a Jaipur or an Indore or a Lucknow, see, I can very clearly say कि IIT 2 बार लिखा नहीं हुआ, right? जब IIT पहली बार लिख रहे थे तो I went into a normal college in Jaipur. हालांकि मेरी कॉलेज की फ़ीस मुझे याद है. सो हमारे कॉलेज में मतलब जयपुर में, राजस्थान में उस समय बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले थे, राइट. कुछ 8-10 खुले होंगे, राइट, टू प्रमोट इंजीनियरिंग, क्योंकि उस समय चल भी रहा था. और 2 तरह की सीट्स होती थी, एक होती थी फ्री सीट, एक होती थी पेड सीट, राइट. तो इफ़ यू आर रियली गुड तो आपको फ्री सीट मिलती थी. फ्री सीट में आपकी फ़ीस होती थी सिर्फ 60,000 रुपये 4 साल के लिए, और अगर आप पेड सीट पे हो तो वो होती थी 4 लाख रुपये, राइट. तो हालांकि आई कुड नॉट क्लियर IIT फ्रॉम दैट लेंस में कुछ
परसेंटाइल से रह गया था, बट एटलीस्ट आई कुड लैंड इन अ फ्री सीट जोन इन जयपुर. अब ऑप्शन नहीं था कि भाई IIT नहीं किया बट एक नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हैं, बट अब क्या करें. तो एक चीज क्लियर थी, इस कॉलेज में टॉप तो करना, राइट? मतलब कुछ तो करें जिंदगी में. अब वो एक गोल था, वो अचीव नहीं हुआ, तो पहले साल टॉप कर दिया, नंबर 1 इन द एंटायर कॉलेज. मैंने कहा यार फर्स्ट ईयर टॉप कर दिया, अब क्या, सेकेंड ईयर भी टॉप कर लूंगा, हो गया मतलब. सो देन आई फिगर्ड आउट कि ठीक है, एजुकेशन इज ओके बट देयर इज मोर टू लाइफ, राइट? एंड देन माय स्कूल एजुकेशन, वो जो डिबेट एंड ऑल ऑफ दैट, आई पुट ऑल ऑफ इट इन माय कॉलेज. क्योंकि while in the first year मेरा इंटेंट फिर से था कि IIT करके मैं तो इस कॉलेज से निकल के IIT चला जाऊंगा, बट अगेन while doing engineering and writing IIT, it was not easy. You're writing your exams and then you're going there. So it was a bad move. And वहाँ से शायद आज अगर स्टार्टअप वर्ल्ड में सोचूं तो राइडिंग ऑन 2 boats is always bad. So वहीं पे समझ में आ गया था कि एक चीज आपने एक्सेल कर ली बट दोनों पे आप नहीं सक्सेस कर सकते. तो या सो कॉलेज में एक चीज बन गई दैट एवरी इवेंट आई वाज एट द हेल्म. And I was winning competitions. I was the poster boy that ways, I can say that. क्योंकि कॉलेज में मतलब वही है ना कि अंधों में खाना राजा वाली बात थी. तो ठीक है, मैं वो बन गया. मज़ा आया, वो हाई मिलता था ये सारी चीज़ें करके. बट कॉलेज से फिर ये सब चीज़ें करके मुझे समझ में आया, while I was winning software competitions, while I was good at coding, and I made a game actually. I wrote that. वो एक गेम नहीं होता था, बॉल ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, pinball, yeah. And I coded it all on C++, right? And that game won a competition. But I think one thing that I realized, that while coding is one space which I was enjoying, but I was enjoying the other part a lot more, which is conducting people, organizing events, rallying everyone around, organizing things. So that was what led me to very clearly decide that ठीक है, engineering हो गई, but my game is to get into MBA. I am more of a business guy. I want to organize things. I want to manage things. I want to manage people. So then the new dream emerged out, which is CAT, right? IIT नहीं, चलो अब CAT लिखते हैं. तो CAT की तैयारी शुरू कर दी, and that was again, I think, since I had lost on IIT, one of the things that I was very clear on, that I will give this time possibly 200-300% of mine, right? And Jaipur में you don't have those many resources, to be very frank, right? तो institutes कुछ ही होते थे, इतने अच्छे फैकल्टीज नहीं होते थे, बट आई लैंडेड इनटू वन विच इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट, राइट? प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स करके होता था. उसके जो मेन डायरेक्टर थे, ही वाज अमेजिंग. ही इज अगेन ऑलमोस्ट लाइक अ स्टार्टअप गाय, राइट? इफ आई लुक एट हिम, विनय मोदी, अ ग्रेट गाय, राइट? सो ही एंड अगेन द आइडिया वाज दैट आई हैड टू एक्सेल इन दोज जो प्री टेस्ट होते थे, क्या बोलते थे उसमें, मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट बहुत दिए, एक ग्रुप बन गया था 3-4 दोस्तों का, हम लोग आपस में बहुत कम्पीट करते थे. And I think the life was all about CAT then, right? So वो जो एक साल बहुत मेहनत करी, right? I remember I had a bed जहाँ पे आधा बेड हमेशा किताबों से भरा हुआ होता था और आधे बेड पे मैं सोता था. It was obviously, और मैं रात को शायद मम्मी आती थी करीब 12:30-1 बजे चेक करने, या तो मैं पढ़ रहा होता था या शायद पढ़ते पढ़ते सो गया होता था. CAT लिखा, CAT में thankfully I got about 96-97 percentile, and then I landed into my college in IMT Ghaziabad. And from then on, I would say the life changed a bit, right? At least now, I was not in the normal league. I was in a slightly better league than the normal colleges, right? And that gave me a little bit of a high, right? Now, IMT Ghaziabad was also good, but अब एक चीज समझ में आ गई थी इंजीनियरिंग से कि यहाँ भी कुछ अलग करना है, right? You cannot be normal. One thing is what I learned, throughout the life, कि आप, even if you're sitting in a room, you need to be different. Even if you're sitting in front of 1,000 people, how can you be slightly different? वो niche ढूंढना बहुत जरूरी है लाइफ में. Mediocrity versus slightly different is something else, right? तो when I went into IMT, मैंने कहा mediocrity वाला काम नहीं करना. लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके तो कुछ नहीं होता, ठीक है? बट सीनियर से बात करी, एक चीज समझ में आई कि वहां पे जो सबसे कविटेड टीम होती है इन द स्टूडेंट्स इज द प्लेसमेंट कमिटी. जो वो 15 लोग होते हैं, वो पूरे कॉलेज को चलाते हैं. उनकी एक आवाज पे रात को 12 बजे पूरा ऑडिटोरियम फुल हो जाता है, क्योंकि प्लेसमेंट की बात हो रही है, नौकरी कहीं से लगती है. सही बात. तो हमारा बैच में यही था कि, और वो प्लेसमेंट का जो राउंड्स होते थे बहुत टफ होते थे. रात को यू वोंट बिलीव, जो सीनियर्स होते थे, जो प्लेसमेंट कमिटी मेंबर्स है 5-7, दे यूज्ड टू कॉल इन अ क्लासरूम, एंड द क्लासरूम इज डार्क. यू कांट इवन सी अ पिन देयर.
and then there'll be questions coming one, and then you need to answer. So it's like a, you know, experience in itself to kind of clear those rounds. So clear karke I became the junior placement committee member. One person of our entire section who was in the placement committee. There was 14 people in the entire campus out of 360 people who were in placement committee, so I was one of them. Second year bhi I was elected as the second year mein fir elections hote. First year mein you need to pass these rounds. Second year mein the students, you know, select you, and you know, after those rounds, तो I got selected in second year also. तो वहाँ पे work ethic समझ में आया क्या होता है, क्योंकि while I was in the campus, my responsibility was to place all the students. So we used to call various companies, set up appointments with the HR heads or CEOs of those companies, visit them, get them that, hey, you're coming on this date for the campus placement, you will hire 14 people, you will hire 20 people. So 360 लोगों को place करने का job होता था. It's almost like a job. Right. And you need to, I used to get perks from college. तो स्पेशल हमारी जो कैंटीन में था, एक मेरा स्पेशल यू नो अकाउंट होता था विच इज़ फ्री, पेड बाय द प्लेसमेंट कमिटी. तो वहाँ पे दोस्त आते थे कि चल यार रात को अब पराठा खिला दे अब तेरे वाले. तो वी यूज्ड टू हैव दोस पराठास. बट आई थिंक दैट्स व्हाट आई विविडली रिमेंबर ऑफ IMT. दैट वाज मोर ऑफ, you know, again trying to be slightly different and learning what is work ethic versus just academic. And moving forward, when you landed to your first job, what was the experience? You wanted to do entrepreneurship in the first chance, or you wanted to test the waters with the job? So frankly, मैं एक बात बताऊँ, again, मतलब मैं अपने आप को बोलूँगा कि I would call myself as a very clueless guy in those early days. मैं अभी भी figure out कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता. मतलब आप ना अपनी जिंदगी के रट में, जो कि आजकल भी है, you get so busy that you don't look at the larger picture. So somewhere that dream which I had as a kid that I want to be an entrepreneur, it was hidden somewhere inside, but I was clueless about it, to be very frank. मुझे नहीं पता था कि मेरा ड्रीम ही क्या है. तो मेरे को बस एक ही चीज़ सिखाई थी मॉम ने कि भाई नौकरी अच्छी लगनी चाहिए, and I was just chasing नौकरी, to be very frank, right? तो entrepreneurship कहीं बैक बर्नर में कहीं चली गई थी. I'll come to that कि वो कब वापस आई. बट कॉलेज में अच्छी नौकरी लगनी चाहिए थी. प्लेसमेंट कमेटी के मेंबर है, एटलीस्ट हमारी तो ठीक ठाक लग जाए. तो आई एक्चुअली वेंट इनटू डेल सर्विसेज. दैट वाज माय फर्स्ट जॉब, राइट. तो वो नोएडा में कंपनी होती थी, पेरो सिस्टम्स कहते थे उसका नाम, बाद में डेल ने एक्वायर किया था. तो वहाँ पे मेरी जॉब लगी थी. करीब 7-8 लाख रुपए का पैकेज था, सिंपल सा. दैट इज़ हाउ आई लैंडेड इन माई फर्स्ट जॉब. और हाँ, मतलब फिर जॉब में जब गए तब आई थिंक द playground when you enter a job is very different than all the way before that. क्योंकि job or your first gig, whatever you do, is your area of control. यहाँ पे जो भी आप करोगे वो आपका है. Academics में बहुत सारे ups and downs होते हैं, बहुत सारी inconsistencies होती है मुझे लगता है, but job में सारी चीज़ें equal हो जाती हैं, right? चाहे आप झुंझुनू से आ रहे हो, या फिर आप जोधपुर से आ रहे हो, या फिर आप दिल्ली से आ रहे हो, यू आर ऑन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड नाउ. नोबडी लुक्स एट योर लैंग्वेज, नोबडी लुक्स एट योर एकेड्स. हियर यू आर वांटिंग टू मेक गुड फॉर द बिजनेस दैट यू आर इनटू. तो मेरे को समझ में आ गया कि अब अपना लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया है. अब कोई कंपटीशन नहीं है, अब डेली परफॉर्मेंस है, राइट. और एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क. अगर आप अच्छा करोगे औरों से, तो आप औरों से बेहतर कर लोगे, right? It's your intent which matters, and my intent was always to excel, right? तो नौकरी में जान लगाई, right? So there were some 11 people. Which year this was? This was 2008. 2008. Yeah, 2008 when I passed out of IMT and I got into Dell Services. कुछ 11 लोग कैंपस प्लेस हुए थे अलग अलग कैंपसेस से. IMT से 4 गए थे, Symbiosis और IIMs वगैरह से कई लोग आए थे. But again, their first 6 months was all about doing projects and getting into various teams, like a typical MT program, management trainee program, and there I excelled, right? I created an amazing project for them. I did all my hard work. I created a CD with a video, all of that I created. मुझे याद है, अच्छा था. And I got selected in the strategy office, where the entire strategy of the company, the sales of the company, reporting very closely to the CEO. I could meet him quite often. तो वहाँ से I think मतलब Dell was good to kind of soul search and learn about organization and how to excel in a company. What are the traits of a good employee versus
एन एम्प्लॉय विच जस्ट क्रिबिंग ऑल द टाइम, वो समझ में आया कि लोग बैठते थे सिर्फ क्रिब कर रहे हैं। मैंने कहा यार अपने हाथ में आपकी ज़िंदगी, क्रिब करने की कोई बात ही नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है दूसरी नौकरी कर लो, अगर आपको पसंद आ रहा है तो यहाँ पे अच्छा कर लो, 2 ही चीज़ें होती हैं। तो आई यूज्ड टू डू वेल, बट 2 साल में मुझे लगा थोड़ा स्लो हो रहा है फॉर द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई वांट और द लर्निंग दैट आई वांट। अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ स्मॉल फिश इन अ ह्यूज ओशियन। तो मैंने कहा इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो आई वांटेड टू स्विच देन। तो मैंने कहा कि डेल इज स्लो, हाउ अबाउट गेटिंग इनटू सेल्स, राइट? बिकॉज इट वाज क्वासाई सेल्स। डेल में डायरेक्ट सेल्स नहीं थी, क्योंकि आईटी कंपनीज में ना डायरेक्ट सेल नहीं होती। वो यूएस में बेच रहे हैं, हम लोग पिचेस बना के दे रहे हैं बट हम बेच नहीं रहे। एयरटेल में देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन एयरटेल। एयरटेल में अप्लाई किया एंड तो डेल में कितने साल काम किया? डेल में 2 साल, Okay. 2 years in Dell, and then I was kind of done. बहुत slow हो गया था. So I applied in Airtel. I got a call, and it was a sales and distribution role. Interview was not easy because I had not done that before, right? And they were asking questions that तुमने तो करी नहीं है sales, कैसे करोगे तुमने you'll be sweating in your pants. How will you be able to manage? मतलब उस दिन मुझे याद है मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि अगर कोई और ये काम कर सकता है, मैं शायद आज नहीं कर सकता बट 1 महीने बाद मैं औरों से बेहतर हूँगा। आई स्टिल रिमेंबर माई आंसर दैट आई विल पुट इन माई हार्ट एंड सोल एंड यू विल सी दैट, एंड इफ यू डोंट लाइक मी फाइन। आई हैड वेरी क्लियरली टोल्ड टू द VP देयर, एंड आई थिंक दे सेलेक्टेड मी, एंड ऑब्वियसली आई परफॉर्म वेरी वेल in Airtel. I always got an A rating. जो Airtel में ABC कुछ 3 ratings होती थी, I always got an A1, A2 rating, which is a top class rating. Always got good appraisals. And Airtel में एक और चीज़ अच्छी होती थी जो कि हम हर 1.5-2 साल में you can apply for a new role. Okay. As an IJP, कोई भी नया रोल आ रहा है कहीं पे भी आपको स्विच करना है, तो I used to apply. तो मैं एयरटेल में करीब 4.5 साल रहा, बट एक्चुअली आई लिव 3 0-1 जर्नीज इन एयरटेल, राइट? तो पहले सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन CEO's ऑफिस, देन लॉन्चिंग 4G for Airtel. So I was, rallying around the entire business, right from legal to HR to finance to, taking approvals, building business plans to launch 4G, and learned a lot in Airtel. But अब यहाँ पे एयरटेल में वो ट्विस्टिंग पॉइंट आया स्टार्टअप वाला, राइट? तो जो डीप इनग्रेन कहीं सीड था, so I interact with seniors also, right? I used to have lunch with my boss, and my boss had a friend who was at a GM DGM level, and I was there assistant manager growing to other levels, but so he was very enterprising. तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम मेहनत तो बहुत करते हो और तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में, तुम्हें पता भी है तुम्हारा गोल? तो मैंने कहा भाई मेहनत कर रहे हैं, ग्रो करते रहेंगे, अप्रेजल अच्छे होने चाहिए। इनफैक्ट आई रिमेंबर माई सिस्टर यूज्ड टू कॉल मी कि तू नौकरी क्यों नहीं बदल रहा? मैंने देखा है कि मेरे जो और लोग मिलते हैं वो तो हर 1.5-2 साल में नौकरी चेंज करके हाइक लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तू क्यों नहीं कर रहा है? मैं कहा मेरे को तो मज़ा आ रहा है, ये हाइक वाइक का क्या सिस्टम है, इतना ज़्यादा हाइक क्या लेनी है? बट आई थिंक शी ऑल्सो पुश्ड मी दैट यू शुड काइंड ऑफ move towards higher goals. And this person, he asked me that what is your goal? You don't even know your goal. I was in that same rut. But जब तो फिर उन्होंने मुझे एक दिन बिठाया, उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ आकाश, you sit down on a weekend and you need to write your 100 goals, right? तो मैंने कहा अच्छा, बोले करो, ये मेरी तरफ से करो, एक नई डायरी खरीदो, एक पेन लो और अपने 100 गोल्स लिखो जिंदगी के। मैंने कहा ठीक है लिखते हैं। And by that time I was married to Rashi also. तो हम दोनों बैठे वीकेंड पे and we started writing our goals. और मुझे याद है जो पहला गोल मैंने लिखा था वो था entrepreneurship. That I want to build a large business, right? अब वो गोल अब की बार हमने लिख दिया है, वो कहीं छुपा हुआ था, बट लिखने के बाद क्या होता है ना, मैंने देखा है जिंदगी में when you write something, it then sticks on to your life, right? It sticks so clearly in your vivid memory that it is always there. This is very true. हाँ, तो जो कहते हैं ना विजुअलाइजेशन, और आई थिंक उन्हीं ने मुझे एक और चीज़ बोली थी कि यार ये ना, आई थिंक मैं उनका एक और कोर टेनेट बताता हूँ। वो जो थे वो मुझे पिच कर रहे थे किसी और चीज़ के लिए, बट मैं कहीं और चला गया। तो ये होता है, ये जो बिजनेस होता है ना, ये एमवे का बिजनेस होता है। इफ यू रिमेंबर एमवे, तो एमवे में वो कुछ बेचते हैं न्यूट्रिशन, तो सप्लीमेंट्स। एमवे में अगर आपको किसी में जान डालनी है एमवे करने के लिए,
तो ये प्रिंसिपल होता है कि पहले उससे गोल्स लिखवाए जाते हैं. That's an MLM, right? दैट्स एन MLM मॉडल. Sure. पहले आपसे गोल्स लिखवाए जाते हैं, फिर आपको बोला कुछ कुछ बुक्स दी जाती हैं, कुछ CDs दी जाती हैं जिससे आपको बिल्कुल आग लग जाती है कि आपको बिजनेस करना है. और मैक्सिमम 99% लोगों में आग तो लग जाती है, बट वो बिजनेस क्या करते हैं आखिरी में एमवे. तो हमें भी वहीं ले गए वो कि यार तुमने तो लिख लिया एंटरप्रेन्योरशिप करनी थी, ये देखो एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया, एमवे करो. मैं तो एमवे करता हूँ. तो मैंने कहा ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं. हमें तो कुछ पता नहीं है. For the listeners, this is how the life of an entrepreneur is built up, right? You get multiple opportunities, but some can be wrong, some can be good. But Yeah. I think that instilled the entrepreneurship. That gives you the bug. Right? That was correct. good for some cause. It was good for me in the hindsight. Not recommended, right? Not recommended. You guys Yeah. not do I that. won't recommend it because I think Amway also now is changed as a business model, and वो जो MLM है वो सिखाता नहीं है आपको कुछ. मुझे नहीं पता, लोग अभी भी करते होंगे. बट मैंने आई थिंक 1-2 महीने ट्राई किया, बट मेरे में एक चीज़ रह गई, मैंने छोड़ दिया वो. मेरे को बिल्कुल बेकार लगा. मैंने कहा यार लोगों के घर जाके ये सब क्या है यार, ये सब अपना बिजनेस नहीं है. सो आई ड्रॉप दैट. बट वन थिंग विच स्टेड विद मी वॉज द थॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अब तो लिख दिया है और ये जो ड्रीम है ये करना है. तो फिर वहाँ से आई स्टार्टेड लिविंग 2 लाइफ्स. तो एक लाइफ जॉब में एक्सेल करना है, दूसरी लाइफ स्टार्टअप बनाना है. और उस समय बातें चालू हो गई थी. दिस इज अबाउट 2012, राइट? तो पीपल वर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स. आई हैड इकोनॉमिक टाइम्स कमिंग एट माई होम एंड देयर वाज वन पेज ऑन ओनली स्टार्टअप्स एंड डिसरप्शंस. आई रिमेंबर इन ET एंड आई यूज्ड टू जस्ट ओपन दैट पेज. मेरे को ET में और कुछ नहीं पढ़ना था, बस वो एक पेज में क्या फंडिंग हो रही है, क्या फाउंडर कह रहे हैं, क्या कोट आ रहा है नया, कौन से फंड्स आ रहे हैं. तो आई यूज्ड टू रीड अ लॉट एंड आई यूज्ड टू गेट अ एड्रेनलिन रश रीडिंग अबाउट स्टार्टअप्स. और फिर मैंने कहा अब तो स्टार्टअप ज्वाइन करना है. एयरटेल इज स्लो. और वो माई सिस्टर ऑल्सो टोल्ड मी कि यार तू नौकरी भी स्विच करके आए, एक ही में ग्रो कर रहा है. तो ये दो चीज़ें जब इंटरट्वाइन करी तो मैं स्टार्टअप ढूंढने लगा. और इंसिडेंटली अगेन लाइफ इज in the hindsight life looks so planned by someone else, right? But when you are almost like a कठपुतली in that life. तो मुझे याद है जब मेरे को स्टार्टअप का समझ में आया कि मेरे को स्टार्टअप ज्वाइन करना है, तो मेरा एक अच्छा दोस्त होता था, सीनियर होता था, वो जब जा रहा था when he was leaving Airtel, I just stumbled on his last day on the जो कॉफ़ी मशीन एरिया होता है एयरटेल का, हर फ्लोर पे होता था, वहाँ पे मैं उससे मिला. उसने कहा आज मेरा लास्ट डे है. मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो स्नैपडील जा रहा हूँ, स्टार्टअप है, कुछ नया करेंगे. मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, मुझे भी ले चलो, अगर कुछ नौकरी वोकरी हो तो मुझे भी बता देना. तो 1-2-3 महीने बाद जब वो वहाँ गए, सेटल हो गए, तो उन्होंने कहा यार एक नौकरी की अपॉर्चुनिटी आई है, व्हाई डोंट यू अप्लाई? तो आई अप्लाइड एंड अगेन स्नैपडील में जो रोल था वो एयरटेल में कभी नहीं किया था. बट अगेन द सेम 0 to 1 सेम पॉइंट कि अगर कोई और कर सकता है मैं अच्छा कर लूँगा, 1 महीना दे दो, आई विल शो यू. एंड अगेन जान तो लगानी आती है. एक ही चीज़ सीखी है ज़िंदगी में बचपन से कि भैया कुछ नहीं है तुम्हारे पास, जान लगानी है. तो जान लगाई और स्नैपडील में एंटर करे. स्नैपडील में सेटअप द इंटायर टीम ऑफ मोबाइल मार्केटिंग, राइट, विच वॉज वेरी न्यू. पूरे देश में किसी को नहीं पता था मोबाइल मार्केटिंग क्या है. ऐप डाउनलोड्स, CPM, CPCs and all of those, app flyers of the world, and so many new things were happening and I was at the helm of all of that. सब कुछ सीखा फर्स्ट हैंड, सब कुछ पहली बार किया एंड इट वाज गुड एक्सपीरियंस. मतलब स्नैपडील में बहुत मज़ा आया क्योंकि सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो रही थी, राइट? आज आपने बोला कि ये क्रिएटिव बनाना है, 2 घंटे में क्रिएटिव लाइव हो गया, उसमें ये ट्वीक्स करके 2 घंटे में पुश नोटिफिकेशन भेजा, उस क्रिएटिव के थ्रू बहुत सारी सेल्स आने लग गई. तो एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन द सेम डे. एयरटेल में 1 महीने में होता था, डेल में 1 साल में होता था, यहाँ पे सेम डे पे हो रहा है. तो एक्शन वाज डिफरेंट एंड लर्निंग वाज डिफरेंट. तो इट स्टेड विद मी. बट फिर स्नैपडील करके और करना है ज़िंदगी में कि सीखना और है, क्योंकि और फिर वहाँ से मैंने बिजनेस आइडियाज़ भी बनाने शुरू कर दिए थे. While I was in Snapdeal and I was intrigued by so much that was happening in startups, I started creating business models on my own. So I created an edtech business model. जो आज की डेट में I think the new age education which is happening, like what White Hat Junior was trying to do, or what Think School is trying to do, right? Or what Sunstone is trying to do, or what this Masters Union Pratham is trying to do. All those things I planned in 2013-14. When I visited various schools, I met the principals that, hey, I want to change the way education is done. People are not just about studies, but they want to learn life skills. How can we tell them what is stock trading, what is selling?
उनको कुछ पैसे देते हैं, बेचने के लिए बोलते हैं, बट आई थिंक पीपल एट स्कूल्स they didn't realize that it maybe I was a little ahead of time, right? So they said नहीं यार अभी नहीं, कौन लेगा, क्या करेगा. तो हमने कहा यार इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा, we are not getting good headrooms. So then pivoted, कुछ और business model सोचने लगे. तो I then looked at a business model of creating footwear, custom footwear, right? And Rashi was always with me. So my wife Rashi, she's also almost like me when it comes to doing a business. वो भी business family से है. तो उसने भी एंड शी इज़ ऑल्सो मारवाड़ी बनिया लाइक मी. तो हम दोनों में वो था कि बिजनेस बनाना है, चाहे we'll die, but we will have to build a business. And she was with me in all my weird decisions about doing this, doing that. That I think helped me, right? If someone would tell me कि नहीं करना, तो maybe I would have gone on a back burner, right, to support her. But she was always करो, करते हैं, let's do it. तो we were almost like that. तो फिर हमने एक शूज़ का बिजनेस, मुझे याद है हम कीर्ति नगर और पता नहीं कहाँ जाके शू मेकर से मिल रहे थे कि हमें इस तरह की चीज़ बनानी है, हमें एक ऐसा शू बनाना है जहाँ पे सोल्स चेंज हो जाते हैं, ऊपर के कवर्स चेंज हो जाते हैं फॉर विमेन. वी ट्राइड दैट, बट अगेन थोड़ा इतना क्रैक नहीं हो रहा था. फिर हमने एक बिजनेस बनाया, मुझे याद है, दैट विच वाज नोन एज लेट्स फ्लॉन्ट, राइट? Let's flaunt.com, right? Okay. So this is an idea which came and this was idea of your wife Rashi. So I think idea somehow मेरे दिमाग में आया, and I could not leave my job. So we were both trying to create it, and she said that I will run it. And timeline again? This was, I think, when I was in Snapdeal. No, much before that. वो जब वो Amway का बंद किया ना, अच्छा, मतलब 2 महीने का ट्रायल करके जब वो छोड़ा, तो आई थिंक 2013 में हमने स्टार्ट कर दिया था ये, राइट? सो 2013 वी काइंड ऑफ डिड एन एक्सपेरिमेंट. और उसमें मुझे याद है शॉपक्लू, स्नैपडील, मोबीक्विक और ये अपने अमेजोन, इन सब पे भी सेलर्स लिस्ट होने शुरू हो गए थे, आई रिमेंबर. तो वी क्रिएटेड आवर ओन पोर्टल, letsflaunt.com. वी लिस्टेड आवर प्रोडक्ट्स. तो हमने कहा टी-शर्ट्स, कस्टमाइज्ड टी-शर्ट्स, customized footwears, customized mugs, coasters, lot of accessories which people want. Hey, I like Bob Marley. Why can't I get Bob Marley? I like Steve Jobs. Why can't I get Steve Jobs on my t-shirt? So we started creating those, right? We took a few machines where you could do customizations. We created one of our rooms as our home rooms, as the entire inventory store, and we hired a couple of people who could print for us. We initially used to print ourselves, right? तो सारी प्रिंटिंग हम खुद करते थे. डिजाइनिंग मैंने खुद कोरल ड्रॉ सीखा, राइट? और कोरल ड्रॉ पे मैं खुद डिजाइन बनाता था, आई रिमेंबर. एंड देन वी स्टार्टेड हायरिंग डिजाइनर्स, की फ्रीलांस डिजाइनर्स, दैट एवरी डिजाइन दैट यू क्रिएट एंड इट सेल्स, यू मेक मनी, राइट? सो हमने उसको थोड़ा सा क्राउड सोर्स कर दिया, एंड पीपल स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन डिजाइंस, पुटिंग ऑन डिजाइंस. तो अच्छा चला. आई थिंक दैट बिजनेस ऑलमोस्ट in 4-5 years when we ran that business, it became almost like a 2-3 crore revenue business with 50% profits, right? तो अच्छा खासा पैसा बन रहा था उस business से, and for a family of 2, that was very good earning. So Rashi then quit her job, okay, and she became full time on that business. पहले हम side hustle की तरह कर रहे थे उसको, right? एक I think हमने क्या खोली थी, proprietorship खोली थी initially, and then we converted into partnership, and then बट एक चीज समझ में आई मुझे, वो बिजनेस ना बहुत स्केल नहीं कर सकता था. मेरा ड्रीम था कुछ बहुत बड़ा करने का. कस्टमाइजेशन जहां पे आ जाती है, आई गेस दैट्स अ इशू व्हेन यू स्केल. करेक्ट, इट्स एन इशू, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ कॉपीराइट इशू दैट माइट कम इन. यार बॉब मार्ले अगर आ गया और बॉब मार्ले छाप रहे हो आप, दैट्स इलीगल. तो हमने ये समझ लिया था कि ये स्केल नहीं हो पाएगा बिजनेस, और मतलब ये ग्लोबल नहीं हो सकता. और मेरा ड्रीम था कि कुछ बहुत बड़ा बनाने का. तो फिर while Rashi was running it fully, I initially just supported with my ideas and designs, and I remember the days were so crazy, Vijay. So entire day I used to work slog in Airtel to ensure that I get that best rating, Airtel में, फिर Snapdeal में. और शाम को 8-9 बजे हम लोग वो अपने सारे ऑर्डर्स देखते थे कि कल के जो 50-60 ऑर्डर्स आए हैं, we used to start printing those. हम लोग 12-1 बजे तक प्रिंटिंग करते थे और वो टी-शर्ट्स को पैक करते थे, और फिर वो अगले दिन वो कुरियर्स राशि अरेंज करके वो कुरियर्स जाते थे. सो आई स्टिल रिमेंबर दोस वीकेंड्स पे वी यूज्ड टू स्टैंड इन मॉल्स. सुबह 10 बजे पहुंचते थे, अपनी एक कियोस्क लगाते थे, कियोस्क होते थे वहाँ पे, अपनी पूरी इन्वेंट्री लगाते थे, एंड वी यूज्ड टू सेल, राइट? इट वाज सो हार्ड वर्किंग. मुझे याद है सेलेक्ट सिटी वॉक में, गुड़गांव के मॉल्स में
एक एक टी शर्ट बेच के इतनी खुशी होती थी, ये लोग 500 रुपए की टी शर्ट 200 रुपए की बनाई है, हम बेच रहे हैं. But I know those were small, nimble earnings. Right. But I think it was a lot of hard work, right? If I look back, वही अपने एक छोटा सा टिफिन बॉक्स लेके वहीं साइड में खा रहे हैं और पूरे दिन बेच रहे हैं, रात को आके बस थक के सो रहे हैं. And that was crazy life, right? That we were living. But I think we wanted to live that entrepreneurship dream somewhere, right? And I think those were building blocks. कंपनी कैसे बनानी है, लोग कैसे हायर करने हैं, थर्ड पार्टी से वेबसाइट कैसे बनानी है, उसको मेंटेन कैसे करना है, कोड कैसे करना है. Like my coding skills also came about. मुझे याद है हमने थर्ड पार्टी से वेबसाइट बनवाई थी और मतलब टिपिकली यही होता है व्हेन यू हायर सम स्मॉल टाइम थर्ड पार्टी, वो आखिरी में पेमेंट कंसर्न्स करके वो कुछ ना कुछ वो कोड डाउन कर देते. ये भी हुआ. फिर एक उनका कोडर ने कहा सर मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप और मैं कोड करके हम फिर से लाइव कर देते हैं, और क्रेजी टाइम्स, राइट. तो वो सब करके सो आई थिंक आई वाज देन ऑन अ लुकआउट ऑफ मोर आइडियाज. मैंने कहा ये बिजनेस उतना स्केल नहीं कर पाएगा जितना मेरा ड्रीम है. हाउ अबाउट think of more ideas, right? तो I started looking more and what I used to do typically, मैं पूरा ग्लोब सर्च करता था कि क्या स्टार्टअप्स बन रहे हैं पूरी दुनिया में, राइट? कौन से स्टार्टअप्स फंड हो रहे हैं, क्या नया आ रहा है, राइट? यू नीड टू बी रियली, अगर आपके पास खुद के पास आइडियाज नहीं है, यू नीड टू गेट इंस्पायर्ड, राइट? तो आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी नई दुनिया जा रहे हो, आप देखो वहाँ पे क्या नया चल रहा है. इंडिया में नहीं है, उठा लो, राइट? चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो. So my eye was on the ball, that I was look out on ideas, and then I stumbled on this thing of mobility, which is shared mobility, right? That concept was getting too much, I would say flame across the globe, right? It was picking up very fast. There were companies which became, $4 billion, $2 billion, $1 billion companies were emerging out of the shared mobility business, right? Sustainable shared mobility. And I said, हम लोग दिन भर कॉफी टेबल पे या डिनर टेबल पे बैठ के एक ही बात करते हैं, पोल्यूशन बहुत हो रहा है, बट हु इज एक्टिंग ऑन दैट? एंड व्हेन आई लुक्ड एट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल मोबिलिटी, आई सेड इंडिया में तो ये बहुत जरूरी है और कोई भी नहीं कर रहा. व्हेन दिस concept came in my head, I said, this is the business that I want to build, right? And yeah, I then within a day I decided that I will quit my job and I have to be the first business who's building this kind of a concept in India, right? Which is shared mobility. I was on a great salary, I was on a great designation. I was VP marketing, head of marketing at MobiQuick. Yeah, I was in Snap. I was in MobiQuick. Okay. So Snapdeal से मैं MobiQuick भी गया क्योंकि मुझे और सीखना था. Snapdeal was also becoming an ocean. 5,000 लोग की टीम हो गई थी. And I was one again fish in the ocean. और एक और चीज़ जो मैंने सीखी है कि if you are a fish in the ocean, then you have limited span of control. But if you're slightly bigger, maybe fish in a small, aquarium or a pond is better than being fish in the ocean, or you become a shark in the ocean, right? So that was the concept that I learned, that I have to be bigger in the space where I'm working, and that way either I become bigger or I go into a smaller space. So again the same thing. So I went into a smaller space. वही college वाली चीज़, right? College में you are in a small college but you have to be topper. So I went into MobiQuick. 200 लोग की टीम थी, right? जहाँ पे 5,000 लोग थे Snapdeal के. Everyone said no. कि मत जाओ भाई, कौन, मतलब why are you switching to MobiQuick, which is a lesser known business at that time, lesser evolved business, smaller business, less funded, and Snapdeal was a unicorn at that time, right? Snapdeal was growing, acquiring free charge and doing a bunch of things. But I said, nahi, I want to go into a smaller space and I want to learn more to prepare myself to do a startup of my own. So this was your fourth job. This was my fourth job, right? Wonderful. So almost 10 years of work life, right? After before entrepreneurship, so went into MobiQuick, learned a lot, did a lot. Again, job I have never looked at as a side hustle. Job is main core principles. You have to be ethical. You have to be doing your best. You can't cut corners there. So I was doing my best there. But again, the second life was to do something more, right? So then stumbled on this thought, and as soon as I stumbled on this thought, I was very clear that I want to do this business. I made a business model, I made a pitch deck, and then I pitched to Rashi, right? कि ये business आया दिमाग में, and she wrote it off.
He said ये क्या business है, ये तो तुम कुछ भी numbers बोल रहे हो, ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं चल सकता इंडिया में. And I was too naive, but I said that यही करना है, I will do this. And then possibly 2-3 days of convincing, I convinced her also कि we will have to do this will be make or break, but if I am talking about entrepreneurship all my life, I need to take one stance at it, right? I cannot die saying that I want to be an entrepreneur. I want to take one shot. And she supported me as good that she is. She said, sure, चलो करते हैं, right? तो हमने business model बनाया, हमने एक tech team hire करी, tech बनाने लगे. This was all going on parallelly with the MoveIt. Yes. So it was all, hidden under the radar. While the decision was made that I am going to quit, but the business had a gestation time of 5 months, building a company, building tech. So I said कि बनाना शुरू करते हैं और जैसे ही लगेगा कि भैया आ गए, हम ऐप बन गए, हम quit कर देंगे. तो I quit MobiKwik in 4 months after that. By that time tech was ready. By that time, I remember एक महीना जब MobiKwik छोड़ के I used to book, co-working, एक मीटिंग रूम्स में हम लोग हायर करते थे, लोगों को बुलाते थे इंटरव्यूज के लिए और लोग बोलते थे ये क्या बिजनेस है, आप तो खुद ही पहला कर रहे हो. बट वी यूज्ड टू पिच हार्ड एंड देन वी मेड अ टीम ऑफ 9 पीपल. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन अ वेरी स्मॉल ऑफिस, ऑलमोस्ट just 2x size of this room. We were in a very small office. Your journey has been great because you came from a tier 2 city, Jaipur. Then you did your education in very humble colleges. And your mother was very quite correct that you should first do your job because your experiences in Dell, Airtel, Snapdeal, MobiKwik, I'm sure that is helping you today. Big time. Big time. Yeah. So that's a great advice because people think that jump out of college and start doing entrepreneurship. That is great. You're trying early on, but you're a right example that you want to do entrepreneurship. First, figure out your own finances, your own life, and then you start jumping, and then you're working on a good idea and a bigger idea. Your vision also broadens and expands. Moving forward, right? Zip Electric. Yeah. When this came in, I would love to know ये नाम कैसे पड़ा? Zip. That's a quite catchy name also. Right? So, thanks for that. So your 9 people team. Yeah. Who came out with this name? No, so frankly, नाम ये नहीं था. Okay. जब स्टार्ट किया था नाम था MobiC. That was the first brand name that we started with. MobiC. So okay. Initially the thought was mobility via cycles. That was the first business model, which is what we started with, to MobiC, right? I didn't know that. Yeah, That's a quite okay. That's true. You started with cycles. I started with cycles. In fact, I wanted to be the first app which had to go live doing the cycle sharing or scooter sharing business. जब हमें दिसंबर में ऐप लॉन्च करी, उससे जस्ट 1 महीने पहले Zoomcar launched the same concept. Zoomcar came with a cycle delivery also. Yes. Zoomcar, not delivery, but shared mobility. Via cycles. तो Zoomcar ने कम से कम 1000-2000 cycles डाल दी थी बैंगलोर में. Okay. And I was zapped. I was like, ये business हमें पहला लॉन्च करना था. और हमेशा ना entrepreneur को ये लगता है कि you have to be the first one and the only one. Then you will be successful. तो मेरी तो हालत खराब हो गई. I was like, shit. We had to be the first company to launch. And now there's a large company like Zoomcar who's launched this concept. We are dead. And this was 17? This was 17. So Zoomcar launched in November. We launched in December. तो वो concept तो अच्छा था. But it was again not made for India. Because हमारे weather conditions अलग हैं. हमारे लोगों को एक shared product को use करने का इतना अच्छे से It's a taboo. It's not a taboo. People don't use the shared product well. हम लोग ट्रेन की सीट इतनी उधार रेट देते हैं. अगर आपको एक साइकिल दे दी एक दिन के लिए तो आप तो उस पर पता नहीं व्हील ही मारोगे. We realized कि बिजनेस अच्छा है, थॉट अच्छा है, मिशन 0 एमिशन, सस्टेनेबल मोबिलिटी है, बट ये इंडिया में नहीं चलेगा. तो 6 महीने में समझ में आ गया था. और फिर हमने कहा कि तो हम साइकिल से स्कूटर्स पे पिवट कर गए थे कि साइकिल तो नहीं चलेगी. लेकिन शायद इसी टाइम पे यूलू भी मार्केट में आया. Yulu came in March और फिर ओला भी आ गया मार्केट में. And then you won't believe the 2 companies which were in China, which were $4 billion or $3 billion, they also launched in India. So it became like a 6-7 people trying to solve the mobility problem using cycles in India. हमने कहा let's launch scooters क्योंकि cycles तो इंडिया में नहीं चलेगी. तो हमने एक चीज, हालांकि ये सारी कंपनीज में एक चीज जो हमने possibly in the hindsight सही करी
इस हमने फेलियर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। हमने मान लिया कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, और वो सबसे पहली लर्निंग हमने आई और हम पिवट कर गए। यूलू करता रहा, जूम कार शायद करता रहा, बट हमने कहा स्कूटर्स चलेंगे इंडिया में। तो वी वर अगेन द फर्स्ट वंस टू लॉन्च स्कूटर्स ऑन द सेम ऐप। वी इंटीग्रेटेड एन IoT ऑन स्कूटर्स। These were electric or these इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हमने कुछ 25-50 स्कूटर्स से स्टार्ट किया था, वेयर वी गॉट इनटू पार्टनरशिप विद कपल ऑफ OEMs। हमने कहा आपके लिए भी अच्छा है, आप हमें स्कूटर्स ऐसे ही दे दो अभी तो लीज पे, अच्छा। और हम चलाते हैं बिजनेस। तो आपने बाई नहीं किया? हमने बाई नहीं करा था। पहले 25-50 स्कूटर्स ऐसे ही हमने कॉन्सेप्ट पे चलाए थे कि चलो 6 महीने के कॉन्सेप्ट है, आप हमें दे रहे हो, रेव शेयर पे करेंगे, और हमने वो डील क्रैक कर ली, राइट। तो हमने स्कूटर्स चलाए। वो इंटरेस्टिंगली थोड़ा बेटर था फ्रॉम द साइकिल्स मॉडल, बट अगेन द चैलेंजेस ऑफ शेयर्ड मोबिलिटी रिमेन, which means how people will use those vehicles, how people will rent, how will people, kind of give back the vehicles, those concerns still remain. तो हम लोग सोच रहे थे कि कॉन्सेप्ट तो अभी भी इंडिया में अहेड ऑफ टाइम है, बट और क्या कर सकते हैं, राइट। तो हम वी वर ऑलमोस्ट ऑलवेज लुकिंग फॉर अनदर पिवट, बिकॉज वी वर समवेयर कन्विंस्ड कि इसमें बहुत पैसा नहीं बन सकता, राइट। और ये पॉइंट टू पॉइंट थी, वन ट्रिप वाली थी, या फिर पीपल कैन टेक अ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन फॉर दैट? पहले पॉइंट टू पॉइंट थी, ओके। तो फिर जो हमारा सेकंड पिवट था वो था लॉन्ग सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे हमने कहा यार ये नहीं, ये डेली एक एक राइड करके 25-50 रुपए कमाने से बेटर है आप एक बंदे को 1000 रुपए में दो, वीकली चलाने दो, और 4000 में पूरे महीने के लिए दे दो। दैट्स अ बेटर, मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रादर देन टेकिंग वन राइड, फिर उसको ढूंढो, फिर दूसरा कस्टमर। इट वाज वेरी मेसी। और तब भी यूजर्स आपके राइडर्स थे या फिर पीपल वर टेकिंग इट? People were taking it, and then when we got into slightly longer rentals, तो पहले तो वीकली रेंटल्स से स्टार्ट किया, फिर हमने मंथली रेंटल्स प्लान लॉन्च करे, ऐप बेस्ड, राइट। तो जब मंथली रेंटल्स करे तो बहुत सारे राइडर्स आने लगे, राइट। तो राइडर्स यूज्ड टू टेक दोस बाइक्स ऑन रेंट फॉर अ मंथ, 2 months, 3 months, 6 months, and we said this is good, that there are people who are picking the bikes on a longer duration, और बाइक्स दिखने लग गई थी, फिर स्कूटर्स चल रहे थे मार्केट में। बट अगेन कुछ मिसिंग था। मुझे अभी भी वो लगता था कि एक ड्राइवर को जब आपने बाइक दी है तो वो 6 महीने बाद या 2 महीने बाद जब रिटर्न करेगा तो उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो रेंटल प्रोडक्ट है और देयर इज नो स्किन इन द गेम। मैंने उससे कुछ चार्ज नहीं किया इतना ज़्यादा कि वो उसको बहुत अच्छे से चलाए। तो वी वर स्टिल लुकिंग फॉर अनदर ब्रेक, राइट। एंड आई थिंक 2 बार तो ऐसा हुआ होगा कि जब हमने स्टार्ट किया बिजनेस ऑलमोस्ट एन ईयर लेटर we were out of funds, but someone came from outside, someone said कि भाई we will support you, we will back you, चलो हम तुम्हें थोड़ा सा कैश और देते हैं, आप चलाओ बिजनेस। ये तभी तक मोबिसी चल रहा है? पहले साल मोबिसी था। जब हमने स्कूटर्स लॉन्च करे थे ना, तब हमने इंटरेस्टिंगली हमने कहा, क्योंकि हमारा साइकिल से बहुत बड़ा कॉनोटेशन बन गया था। NCR में we were almost always in the newspapers. Mobisi, अच्छा brand. I think one thing that we do well is kind of create that hype around that you learned in your early days. हाँ, मेरा मार्केटिंग का मेरे को हमेशा मजा आता है वो सब करने में, तो लोगों को पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मोबिसी इतना स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन था साइकिल्स को लेके कि उसको स्कूटर जब हमने लॉन्च करे, हमने उन पे लिख दिया जिप पावर्ड बाय मोबिसी, और फर्स्ट वर्जन था तो मोबिसी जिप, टू कैरेक्टराइज स्कूटर एज अ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड कम आउट ऑफ द इमेज ऑफ साइकिल्स। We called it Mobisi Zip. And color scheming was same. Colors were green, right? Green. Colors were always green. वो तो day one से हमारा ब्रांड साथ चलता है, आपका मग भी ग्रीन है, which is good. So हमने फिर क्या किया कि हमने फिर Zip को यूज करना शुरू कर दिया। और Zip कैसे आया, जो आपका सवाल था, तो I said we want a new brand name. Our scooters need to be differently imaged by people. And हमने कहा हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी लेके जा रहे हैं, तो something which can move fast. And I wanted a 4-letter word, right? तो बहुत clear था, again very small room, 5 people, quickly searching brand names that are 4-letter words and which signify speed, right? तो I think 5-6 नाम आए, and one of those names was Zip, ZIP. तो हमने कहा यार ZIP तो नहीं करेंगे, उसको थोड़ा twist देते हैं। Anyways डोमेन नेम भी अवेलेबल नहीं था, तो then came with ZYPP, ये कर लेते हैं, 4 लेटर भी बन गए, थोड़ा जिंगी भी हो गया, और इट्स कॉनोटिंग फास्ट, लेस देन 15 मिनट डिस्कशन, और उसी समय मैंने डोमेन नेम बुक किया। हमने कहा zip.app is gonna be the कैरेक्टराइजेशन ऑफ आवर न्यू ब्रांड।
एंड फिर मोबिसी जिप से धीरे धीरे इट वॉज अगेन अ डिफरेंट चेंज आफ्टर एन ईयर टू से कि यार मोबिसी तो अब किल करना पड़ेगा. जिप is our connotation. We are a electric scooter company now, and then Zip will be the only brand name. So in the second year, we took the Mobisi site का traffic भी हम फिर Zip पे move करने लगे and all of that, and Zip became the main business. But अभी तक हम delivery में नहीं pivot करे थे. That is another pivot. अभी तक users पे चल रहे हैं. अभी तक users पे चल रहे थे, but delivery boys लेने लग गए थे. अब हमें उस समय भी हमें कुछ और ढूंढना था. वी वर ऑलवेज ऑन अ लुकआउट कि ये बिजनेस में प्रॉब्लम है बिकॉज एसेट का प्रोटेक्शन इतना अच्छे से नहीं हो रहा, वो ड्राइवर ढंग से नहीं चला रहा. तो हमने एक और चीज़ ट्राई करी कि हमारे पास बिजनेसेस भी आते थे, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये सब बोलते थे आप डिलीवरी क्यों नहीं करते, हमें इलेक्ट्रिक पे डिलीवरी चाहिए, आप डिलीवरी करके दिखाओ हमें. हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, हमने राइट ऑफ कर दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल, नहीं चल सकता, रेंज एंजाइटी आती है, बंदे को चार्ज नहीं मिलता और वी डोंट नो. तो हमने कहा ठीक है, हाँ हम ट्राई करते हैं. हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, बड़ी बिजनेसेस हैं कि आप हमें एक पायलट की अपॉर्चुनिटी दोगे, हम सिर्फ 20 व्हीकल्स आपके एक हब में लगाएंगे, अगर आपको लगे कि हम ठीक ठाक कर रहे हैं तो मैं और बिजनेस दे देना. सो वी ट्राइड एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट इन December of 2019. Okay. So just 2 years, December 2019 we started doing deliveries with a small fleet of 50 vehicles out of 300 vehicles. हमने कहा 50 को डिलीवरीज में लगाते हैं, समझते हैं धंधा क्या है. तो शुरू किया और ठीक ठाक लगने लगा. 3 महीने बाद जब मार्च में नंबर्स देखे तो ये अच्छा लग रहा था. I'm seeing where this is headed to. You're heading towards COVID now. Yeah, absolutely. You're right. December 19 we started. March 20, right? COVID happened. और COVID जब आया तो बिल्कुल मतलब every brand reached out to us that hey, you do deliveries, can you do it for us? And obviously those first 5 days were clueless, right? हमें खुद नहीं पता था हम क्या करेंगे. बट ये पायलट था हमारा, सिर्फ 50 व्हीकल्स का, कोई ऐप नहीं बनाई थी, कुछ नहीं बनाया था, बस ट्रायल था. एक मैनुअल वे में हम ड्राइवर को व्हीकल से अटैच, वो तो हमारे पास प्रोसेस था ये IoT वाला, पर वो कितनी डिलीवरी कर रहा है कोई टेक नहीं, सिर्फ बस ऐसे ही चल रहा था. क्लाइंट डेटा देता था कि भाई इतनी डिलीवरी कर ली, ठीक है कर लेते हैं, मान लिया. ऐसे बिजनेस चल रहा था. हमने कहा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, लेट्स पिवट. एंड दिस वाज आई थिंक आवर थर्ड फोर्थ पिवट, आई डोंट नो, बट इट वाज लाइक अनदर पिवट for us, and I think we were the only company which pivoted into delivery at that time. उस समय you won't believe there was Yulu, there was a Bounce, Yes. there was a Vogo, and there were a few more companies, a DriveZ, Zoomcar. All of these companies were doing subscriptions. DriveZ came with scooters? DriveZ was with scooters also. Isn't it shut now? हाँ, अभी I think I DriveZ don't is find no their cars in Bangalore. Yeah, DriveZ is I think shut now, I but guess. they also, I think all these companies raised a lot more capital. We had very limited capital, right? If they would have raised 100 million, we would have raised 2 million. I would have pitched close to 500 investors in this journey, and everyone said that either you are ahead or you are late in the journey, because you're late because बाउंस ने 200 मिलियन रेज कर रखे हैं, आप क्या कर लोगे. आई एम नॉट those one of those guys who can kind of get the VC mind aligned. मुझे ऐसा लगता है कि VCs को कुछ स्टारी स्टोरीज चाहिए होती हैं. मैं बहुत ही सीधी बात करता हूँ, मैं मतलब मुझे जो पता है मैं क्लियरली बता देता हूँ, मैं कुछ उल्टी सीधी बात नहीं करता. आई डोंट नो हाउ टू डू दोज काइंड ऑफ पिचेस. आई एम लाइक स्ट्रेट ऑफ, दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई यूनिट इकोनॉमिक्स, yes I'm not making money, yes I will make money. When this opportunity of delivery came in, I said ठीक है यार, हम जो भी कर रहे हैं बेकार है, let's pivot, right? And the team was saying नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, but I was like नहीं, we will pivot into the delivery business. I think a lot of businesses wanted our delivery solution क्योंकि हम पूरी customized delivery solution देते हैं, all on electric. ड्राइवर भी खुद लाते हैं, चार्जिंग भी खुद फिगर आउट करते हैं. जैसे अमेजोन को जब 20 स्कूटर्स चलने लगे, उन्होंने कहा आप दूसरा हब करो. बिग बास्केट के एक हब पे जब हमने अच्छा किया तो उन्होंने कहा आप सारे हब्स क्यों नहीं करते. तो डिमांड भर भर के आ रही थी. जोमैटो बोल रहा था कि आप डिलीवरीज हमारे लिए भी करो. नोबडी हैज सीन अ 2-wheeler led 3PL on electric, right? And we became that out of our failures. और ये स्केल कैन बी ट्रेमेंडस कि आज आप दिल्ली कर रहे हो, बैंगलोर कर लो, हैदराबाद कर लो, आप स्कूटर्स कर रहे हो, 3-wheelers कर लो, 4-wheelers कर लो. एटलीस्ट यू हैव बिल्ड अ कोर टेक which is the asset management tech and the fleet management and the charging management and maintenance management. Correct. Which can then be replicated, and those are moats
that will be tough to replicate. And for our viewers, we at Sunicorn Ventures also invested in Yes. You are one of those guys who said, चल कर ले आकाश, we are with you. आपने Shark Tank में भी appearance दिया था, right? Tell us about your experience there. What happened there? तो Shark Tank was a good experience क्योंकि मतलब I have watched the US Shark Tank quite a lot. बहुत देखा है मैंने और राशि ने. हम लोग रात को मतलब वो जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारे अंदर कीड़ा था, जो भर भर के था, वो हमारा रिचार्ज कैसे होता था वो यूएस वाला शार्क टैंक देख के. और बिजनेस आइडियाज़ भी वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लगते थे. हम नोट्स बनाते थे, हम सीखते थे, हम पिच सीखते थे. और फिर हमारे आई थिंक जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है वो एकदम जाग जाता था हर रात को. फिर हम सो जाते थे. तो यार शार्क टैंक का जब वो कॉल आया तो आई हैड टू फिल अ फॉर्म. आई फिल दैट. फिर वो एक दो उनके वो होते हैं डेमो सेशंस. यू नीड टू क्रिएट अ पिच, you send it to them, then they select, then you go to a hotel where you pitch again in front of the Sony crew team. But one thing was very clear, I was excited about it, right? Because Shark Tank was a dream, which I have been seeing, the US one, and if it is happening in India, why do not go there? हमारा राउंड हो गया था actually. तो जब हम Shark Tank पे गए थे, हमारा सीरीज A राउंड कंप्लीट हो गया था. वैल्यूएशन सेट हो गया था, 220 करोड़ का कुछ वैल्यूएशन था. और मुझे पता था कि शार्क्स विल नॉट सब्सक्राइब टू दैट हाई वैल्यूएशन एंड दैट हाई चेक साइज 2 करोड़ का. बट वी हैड टू जस्ट डू आवर जॉब, राइट? बिकॉज इट वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड वी कांट से नो टू इट. तो हम तो गए थे, हमने अपना पिच कर दिया. वी वर एक्चुअली कंफ्यूज कि शार्क टैंक में पिच क्या करें, क्योंकि शार्क टैंक में या तो हम सोच रहे थे कि कुछ एक नया सा बिजनेस मॉडल पिच कर देते हैं जो शार्क टैंक लायक हो, बट हमारे कोर बिजनेस को ही पिच करना चाहिए अगेन. But I think it was a little bit of confused pitch, to be very frank. But again, a great experience for us to learn. And anyways, funding नहीं होनी थी वो पता था, but मजा आया. So moving forward, Zip के model पे बात कर लेते हैं. To your asset-light model, that's what currently is. Can you explain us, because there are riders, there are NBFCs who are financing, or maybe retail investors who are financing it. There are companies who are coming and taking these vehicles from you. So how are you? The ecosystem is being built right now. Yeah. तो सी कोविड के 300 स्कूटर्स से अब हम 20,000 के फ्लीट पे हैं, राइट? वी आर, आई वुड से, ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट प्लेयर डूइंग दिस इन दिस मॉडल, पॉसिबली इन इंडिया एंड देन पॉसिबली द ग्लोब, बिकॉज ये बिजनेस मॉडल अभी भी इज फिगरिंग आउट, राइट? तो हमने कहा कि 20,000 स्कूटर्स लगाने के लिए अगर आप पकड़ लो 1 लाख का एक स्कूटर, दैट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. वी नेवर हैड दैट मनी, right? We were never a VC company, so we never could raise a lot of capital. So we had to figure out ways to grow. And again, I think the biggest lessons you learn out of struggles, and one of our struggle was that we wanted to grow and we never had money. तो हमने ये कहा कि asset light तो आज बोलते हैं, but it was the struggle to not have money which stumbled us into this business model, where we started asking people to invest in the bikes, in green assets, that आप भी देश की भलाई के लिए, पोल्यूशन रोकने के लिए कुछ स्कूटर्स खरीद लो और हम आपको इंटरेस्ट पे अच्छा रिटर्न दे देंगे, 20-25% का रिटर्न दे देंगे. और वो जब चलने लगा तो आई थिंक लोगों समझ में आया ये तो बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है. हमारा ये कोर बिजनेस नहीं था, तो इसके बेसिस पे बहुत सारी कंपनीज बन गई. इट बिकेम अ बिजनेस मॉडल. सो ग्रिप इन्वेस्ट एंड मेनी अदर्स, मफिन एंड मेनी अदर्स केम फॉरवर्ड एंड दे सेड कि हम करेंगे ना ये आपके लिए, आप ग्रो करो, स्कूटर्स हम डालेंगे, हम कंपनियां बनाएंगे, हम उनमें स्कूटर्स रखेंगे, आपको लीज पे देंगे, आप हमें दे दो ये 20% का रिटर्न या 18% का रिटर्न. हमने देना शुरू कर दिया. तो ऐसे ऐसे करके अब 5-6 कंपनीज आ गई जो कि ये सब करती है हमारे लिए. वो बिजनेसेस अच्छे चलने लग गए, वो बिजनेसेस फंड हो गए हैं अब. So your investors, you rightly said that these platforms were giving you all these investors, right? How much convincing did it lead for you to do in the initial times? Although now it's an established model, because people understand कि ऐसे दो और मेंटेनेंस वाली बात को भी लिंक करते हैं, because we have seen कि स्कूटर्स की लाइफ के साथ में ना बड़ी challenges हैं अभी भी. And to add to this, जो cycles वाला मॉडल है, that also crashed in China also, and maybe you big time everywhere did that, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत मुश्किल थी. Yes. तो हाउ डिड यू कन्विंस इन्वेस्टर्स कि आप लोग स्कूटर्स बाय करो? एंड सी फ्रैंकली जो पहली बार हमने ये बिजनेस मॉडल क्रैक करने की कोशिश करी थी ना, इट्स ऑलमोस्ट अ प्योर
retail person who is not very smart, who said कि हाँ पेपर पे तो रिटर्न अच्छा लग रहा है, और हम लोग ने एक चीज़ कमिट कर दी थी कि अगर हमने ये रिटर्न बोल दिया है तो बीइंग एन एथिकल कंपनी हम वो रिटर्न देंगे चाहे स्कूटर हो ना हो. ये हमारा हेडेक है भाई. अगर आपने 50,000 हमें दिए हैं स्कूटर में इन्वेस्ट करके तो हम आपको 60,000 रुपये आपको देंगे ओवर 3 years. दैट वॉज द मॉडल. एंड अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बिजनेस इज एथिक्स. तो उस पर हम कभी पीछे नहीं हटे. टचवुड कभी हटना का मतलब भी नहीं बनता बिजनेस में. तो हमने वो इन्वेस्टर्स को ऑन फेस वैल्यू कमिट कर दिया था, अग्रीमेंट पे प्रॉपर कमिट कर दिया था. स्टैम्प पेपर का अग्रीमेंट आपको चाहिए वो कर लो. वी आर कमिटिंग दिस अमाउंट टू यू एंड वी विल गिव यू बाय आवर हार्ट एंड सोल. एंड आई थिंक क्योंकि रिटेल कस्टमर्स थे, कोई 10 स्कूटर डाल रहा है, कोई 5 स्कूटर डाल रहा है, कोई 20 स्कूटर डाल रहा है, तो वो भी अपनी साइड इनकम के लिए जो अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि चलो स्टॉक में डालता हूँ 2 लाख इनके स्कूटर्स में भी डाल के देखता हूँ, अगर 20% रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक्स में तो नहीं मिल रहा है, इतना कर लेते हैं. I know your mother also invested, right? Yes. My mother also invested in 10 scooters. I remember my sister invested for the first time. और वो related party में count होता है, तो I always give that explanation that this is on arm's length. जैसे औरों ने किया है वैसे ही मॉम ने भी किया है. And so it was a compelling proposition actually. So we had to create compelling proposition so that people invest, and we had to then stay by our word. Those are the two things that did. जो 50 से 200-250 स्कूटर्स पहुंचे वो ऐसे ही पहुंचे हैं. और जब हम 200-250 स्कूटर्स पहुंच गए तब कंपनीज आ गई कि ये आप क्यों कर रहे हो, इसको हमें करने दो. और हमें उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था तो हम वो कंटिन्यू करते गए और वो लोग करते गए. बट फिर आफ्टर 6 months वी स्टॉप डूइंग दैट. हमने कहा ये हमारा कोर नहीं है. लेट कंपनीज डू दिस. लेट देम फाइंड 1000 स्कूटर्स फॉर अस एवरी 2 months एंड आवर जॉब इज टू रन दो स्कूटर्स. आवर जॉब इज टू मेक मनी एंड गिव देम द मनी. और ऐसे ही इसी कॉन्फिडेंस के चलते चलते 20,000 हो गए, ऐसे ही 1 लाख हो जाएंगे. Great. So coming towards the riders part, right? Yeah. And I appreciate कि मैं जितने भी आपके सोशल मीडिया पोस्ट भी देखता हूँ. And by the way, Akash has his own channel, Kash से Akash. Yeah. He has been an influencer himself. And मैंने आपके कई सारे पोस्ट देखे हैं where you actually go out and meet the riders. Yeah. And that's quite recommendable and commendable on that part. इनकी सेफ्टी एक कंसर्न है, राइडर सेफ्टी. हाउ डू यू मेक श्योर कि योर राइडर्स आर सेफ? One is a lot of investment in training. Right? So every person goes through a training module. There's a specific module on safety, riding, behavior, right? Meeting the customer behaviors. All of those things are integrated onto the app, where if the guy fails on that, then he is not able to join the platform, right? It's a very strict, hardcore module. That's one. Second is reinforcing. Not just one-time training, but reinforcing it every 15 days, 30 days. Creating examples of positive stories. That is something that we do. We recently partnered with the traffic police, and we created a lot of modules for our drivers through the traffic department, and did a full road safety week where we again created modules to train them. We ensure that every person, whether he has a helmet or does not have a helmet, he needs to get a helmet, right? Which is again very important part of our safety concern. We check their selfies, whether he's wearing the helmet or not, right? Which is part of our thing. I think, but still I would say that this is just the beginning, right? Plus we invest in the best of the bikes according to us, which are not very high cost, but longevity. पार्ट्स की कॉस्ट कम होनी चाहिए. वो सारी नेगोशिएशन हम बहुत हार्ड कोर करते हैं, विच इज़ वेरी कोर पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, राइट? अगर कोई और ब्रांड खरीद रही होगी, हमें पता चलता है वो 20% एक्स्ट्रा में खरीद रहे हैं, बट ऑब्वियसली वी बाय एट बल्क, सो वी कट द कॉस्ट फ्रॉम द OEM ऑल्सो कि भाई वी विल बाय 1000-2000 स्कूटर्स फ्रॉम यू एवरी मंथ, यू बेटर गिव अस द बेस्ट प्राइस, राइट, एंड द बेस्ट क्वालिटी. तो ये सारी चीज़ें करके हम इंश्योर करते हैं दैट राइडर सेफ्टी इज़ इंपॉर्टेंट. हम बीच बीच में R&R भी करते हैं. जो बेस्ट ड्राइवर्स निकलते हैं उनको हम देते हैं. और प्लस वी हैव एन IoT which is tracking their driving behavior. So we rate the drivers. We have 4 grids: platinum, gold, silver. Depending on the rider behavior, we have categorized all our pilots into these categories, and basis that they get better incentives, better monetization opportunities on the platform. तो ये सारी चीजें a lot tech dependent and a lot SOP dependent है. But I guess you are also supporting the gig economy, right? Big time.
20,000 riders are getting a Yeah. job Yeah. to do, right? And I'm sure that they are doing a gig work because They're all gay. when they find something crucial, they will move towards that. But it's a good feeling for them that during the time they're figuring out their lives, True. they can come to and do rides. True. Right? That's a great initiative. You're killing two stones, two birds from one stone. Yeah. Right? What are the next plans? Right? Zip Electric, today you are 20,000 riders. Right? You are in 4 cities so far. What are the next goals you have set for yourself and your team? This I feel is just scratching the surface. मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हमको सिर्फ 20,000 पे नहीं रुकना है. पूरा मार्केट 20 लाख का है, राइट, इन इंडिया ओनली. ग्लोबली तो बहुत बड़ा है, राइट, 5 टाइम्स होगा, राइट. तो वी वांट टू एटलीस्ट कैप्चर 20% ऑफ द मार्केट फर्स्ट इन इंडिया एंड देन in various other parts of the world. So I see this going very big. I feel that why not, if I'm going to Europe or if I'm going to Dubai and I'm going to Thailand, I don't see the green scooters there also. Why not I don't see those scooters in every part of India. Focus है कि इसको expand करते जाएं, इसको और strong बनाते जाएं टेक के साथ, अच्छे लोग डालते जाएं, so that the business which is in 4 markets can become in 40 markets in the next 4 years. That's a great number. So I guess that's about it from our whole discussion. I would love to summarize this. We discussed about his early stage life from Jaipur, his work life in job, then doing a business with his wife, and then shifting towards Zip, which is now a great brand, and we are happy to be having Zip in our portfolio, for that matter. And congratulations, Akash, for building Zip. Thank you so much. That was my closing statement. And thanks for being the part of this, an active part of this. Right. So, any questions you may have from both of us, you can drop in comments, and we will be happy to answer. Thanks a lot, Akash. Thank you so much. It was a pleasure. Thank you.